Hello students, let's continue with our lesson number 1, how the camel got his hump of the supplementary reader in English. In the previous video, we studied part 1 of this lesson. In part 1, we studied that there is a camel who was very lazy. Lazy means who was very idle. Idle means lazy, right? And he lived in the middle of the howling desert. Whenever anyone asked him anything, he only said hum, right? He did not work till the Monday morning according to this lesson. And as he was very lazy, he did not work anything, right? The horse, the dog and the ox one by one went to him and told him to do work. But he only said hum. Even the jinn who was in charge of the desert, he was also at his wit's end. Even he was also very sad with the behavior of this camel. Okay, let's move on with part 2. If you have a textbook, open it, part 2, page number 4. The jinn remonstrated with the camel. Here remonstrated means resist करना, complain करना. The jinn remonstrated with camel. Here remonstrated means complained. वो जिन है वो भी camel को complain करने लगा. Who said only hum. The camel's beautiful back suddenly grew a lump. उसकी जो back थी, beautiful back थी कैमल की, बट सडनली ग्रू अ लम्प, पर उसमें एक गांठ सी पड़ गई. आप अगर कैमल आपने देखा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी पीठ पे बैक पे एक लंप सा हो गया, एक गांठ सी पड़ गई. जो उसका भाग है वो उपसा हुआ दिखने लगा. विच वॉज द कैमल्स हम्प, और उसे कैमल की जो हम्प कहा जाता है. ऑलवेज ही सेड हम्प, सो the camel's beautiful back suddenly grew a lump and which was called camel's hump. The jinn assured the camel his hump would always be health, not a hindrance. Right? But जो जिन ने कहा, जिन ने कैमल को श्योरिटी दी कि उसका जो हम्प है, राइट, वो हेल्पफुल रहेगा, ना कि एक अवरोध रूप. राइट, उसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी. The jinn assured. Here assured means sure. And hindrance means harder, means कोई भी अवरोध. जिनने उसे लंप तो दे दिया, पर उसने कहा कि ये तुम्हें सदा हेल्पफुल रहेगा, तो तुम्हें कभी अवरोध रूप नहीं रहेगा. The jinn rode himself up in his dust clock. जैसे जिन है वो यहाँ पे जैसे डस्ट क्लॉक है ये, राइट, डस्ट का जो राउंड है उसमें वो रोड हो गया. एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर. जिन ने जाके देखा तो जो कैमल था वो अपना ही रिफ्लेक्शन देख रहा था एक वाटर के pool में. Right, you can see in the picture given in your textbook. Here a picture is given in your textbook. In this picture you can see that a camel looking his own reflection in a pool of water. My friend, said the jinn, what's this I hear of your doing no work. उसने कहा कि मेरे मित्र, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई वर्क नहीं कर रहे हो. What's this that I hear you are doing no work. The jinn sat down. He sat down. Sat down means sat is a past form of sit. जिन वहाँ पे बैठा. With his chin in his hand, ऐसे अपने चीन को अपने हैंड में लेके. While the camel looked at his own reflection in the pool of water. Right? You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn. तुमने जो आलस की, तुम्हारे जो आइडलनेस की वजह से तुम्हें मंडे मॉर्निंग से 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए गए हैं. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चेन इन हिज हैंड. वो ऐसे कहता गया कैमल को, ऐसे अपनी चेन पे हाथ रख के.
humph, said the camel. But again, camel said only humph. I shouldn't say that again if I were you. मुझे ऐसा दोबारा नहीं करना चाहिए. If I were you, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता. Again and again humph नहीं कहता. Right? You might say it once too often. I want you to work. मैं तुम्हें एक ही बात कहूँगा. I want you to work. जिन कहता है कैमल को कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम काम करो, ऐसे लेजी ना रहो. And the camel said again, humph. But no sooner had he said it than he showed his back, that he was so proud of, puffing up and puffing up into a great big hump. जैसे उसने humph कहा, again and again humph कहा, तो फिर उसने अपना रिफ्लेक्शन जब वाटर के पूल में जब देख रहा था तो उसने देखा कि उसकी जो बैग थी कि जिस पर उसे बहुत गर्व था. ही वॉज सो प्राउड ऑफ इट्स बैग. राइट? पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प. तो वो बढ़ती गई और एक जैसे गांठ सी पड़ गई, एक जैसे सूजन सी हो गई. राइट? डू यू सी दैट? सेड द जिन. और फिर जिन ने उसे पूछा, तुम देख सकते हो अपना रिफ्लेक्शन हियर इन दिस पिक्चर, यू कैन सी. Right? Said the gene that do you see that? That's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. ये जो hump है तुम्हें इसलिए मिला है because of your laziness, as you are not working. Today is Thursday and you have done no work since Monday. आज Thursday है और Monday से तुमने कोई भी काम नहीं किया. When the work began, now you are going to work. अब तुम्हें काम शुरू करना चाहिए. How can I? said the camel. With this lump on my back. मैं अब कैसे काम करूं? मेरे बैक पर तो हम्प हो गया है. तो how can I work? Right? That has a purpose, said the jinn. तो जिन ने कहा कि वो जो हम्प है उसका भी एक पर्पस है, उसका भी एक हेतु है. All because you missed those 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your hump and don't you ever say I never did anything for you. Now come out of the desert and go out of the tree and behave. Now किस पर्पस के लिए उसे दिया था कि जो 3 दिन जो कैमल ने वर्क नहीं किया तो वो अगले 3 दिनों तक कंटिन्यूस वर्क कर सके विदाउट ईटिंग. खाए बिना 3 दिन तक कंटिन्यूस वर्क कर सकता. अभी आप देख रहे हो कोई कैमल है, अगर आप कैमल के बारे में जानते हो तो कैमल 3 दिन तक पानी और खुराक के बिना रह सकता है. तो इसका जो रीज़न है ये है. राइट? तो और फिर तुम 3 दिनों तक रह सकते हो ईटिंग के बिना और वो जो वर्क तुम्हारे लिए बाकी है वो तुम कर सकते हो. तो तुम डेजर्ट से बाहर आओ, कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो आउट ऑफ द ट्री. वो तीनों एनिमल के साथ जाओ और वर्क करो एंड बिहेव लाइक अ गुड एनिमल. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री. फिर कैमल चला गया उन तीनों के पास. एंड फ्रॉम दैट डे टू दीज द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प. और उस दिन से आप देख सकते हैं कि कैमल के बैक पर हम्प है. वी कॉल इट हम्प नाउ. और हम अभी उस हम्प को क्या कहते हैं? हम्प. राइट? HUMP. Now not to hurt his feelings, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world. इसे ये खिताब मिल गया हम्प का. राइट? क्योंकि उसने जब वर्ल्ड की शुरुआत की थी तब वो बहुत आइडल था, लेजी था. तो उसने वो 3 दिन जो मिस कर दिए उसकी वजह से उसे ये परिणाम भुगतना पड़ा. एंड ही हैज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव. और वो कभी सीख ही नहीं पाया कि कैसे बिहेव करना चाहिए. दिस स्टोरी इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. एंड फ्रॉम दिस स्टोरी यू कैन सी दैट that's how the camel got his hump. And in this story, Rudyard Kipling brings out the theme of laziness effectively. Right? जो laziness की जो theme है, जैसे कैसे कैमल लेजी था, वर्क नहीं कर रहा था. राइट? तो इस laziness को effectively उन्होंने इस स्टोरी में
दिखाया है। द मेन आइडिया हियर इज टू मेक द रीडर्स अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। यहाँ पे जो रीडर्स है, जो सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको ये समझाया गया है हार्ड वर्क का महत्व, कि कैसे हार्ड वर्क कितना ज़रूरी है। लेजीनेस विल नॉट लीड अस टू सक्सेस। अगर हम लेजी रहेंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल. You have to read this lesson. Okay, thank you.